آپ کو بتائیں سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ سے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ بلاول بھٹو بھی لاڑکانہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ سابق صدر کہتے ہیں میاں صاحب ہم پارلیمنٹ آپ کی کرسی کھینچنے نہیں بلکہ سبق سکھانے آ رہے ہیں، مغل بادشاہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ خوشخبری یہ ہے اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے حوالے سے گڑھی خدا بخش میں منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف زرداری نے نواب شاہ سے اپنی بہن فریال تالپور کی نشست سے ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ سابق صدر نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو لاڑکانہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب پارلیمنٹ آپ کی کرسی کھینچنے نہیں بلکہ سبق سکھانے آ رہے ہیں۔ وہ خوشخبری یہ ہے اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے۔ میں نواب شاہ کی نشست سے کھڑا ہوں گا اپنی بہن کی جگہ اور بلاول بھٹو لاڑکانہ سے سومرو صاحب کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے۔ آصف زرداری نے وزیر اعظم نواز شریف کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب آپ سے پاکستان سنبھل نہیں رہا۔ میاں صاحب ہم نے آپ کو امانت سمجھ کر سیاست دی تھی لیکن آپ نے جمہوریت کا کھانا خراب کر دیا۔ میاں صاحب وہ دن یاد رکھیں جب طاقت کو پارلیمنٹ میں شفٹ کیا۔ کیا آپ پاکستان کو ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں مغلوں کی جنگ ہو؟ لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس بادشاہت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پارٹی نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم اس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات پہ ہمارا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ پاناما لیکس پر سپریم کورٹ کے احتساب پر کوئی اعتراض نہیں جبکہ قطر میں 2 نمبر آدمی بیٹھا ہے۔ اس دوران سابق صدر نے وضاحت کی کہ ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو نے کبھی نہیں کہا کہ پارلیمنٹ پر چڑھائی کریں گے۔ ہمارے چیئرمین نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ سب جمہوری باتیں ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں روڈوں پہ آ کے اور پارلیمنٹ پہ حملہ کر دوں گا اور میں آپ کو دفن کر دوں گا جس طرح کوئی اور لیڈر کہہ رہے ہیں۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا۔ سابق صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ عامروں سے ضرور لڑے لیکن فوج کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ ہم نے بی بی کی شہادت دیکھی اور اس کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے اپنے 4 مطالبات منوانے کے لیے ملک بھر کے دوروں کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں سیاسی لوگ مارچ کی تیاری شروع کرنا ہے۔ پیراملیکس پر قوم احتساب مانگ رہی ہے جبکہ وزیر اعظم نواز شریف بھاگ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار مستعفی ہونے کی بجائے اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں، سیاسی لوگ مارچ کی تیاری شروع کرنی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ رہیں تو عوام کے لیے اور انہوں نے عوام کے لیے ہی موت کو گلے لگایا۔ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ صاحب آپ تو باہر چلے جائیں گے لیکن عوام کو اسی ملک میں رہنا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کرپشن اسکینڈل پاناما لیکس میں نواز شریف کا نام ہے۔ قوم احتساب مانگ رہی ہے اور وزیر اعظم بھاگ رہے ہیں۔ میاں صاحب آپ نہ خود تماشا بنیں اور نہ نظام کو تماشا بنائیں۔ میاں صاحب آپ نے احتساب کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا تھا تو اب آپ احتساب سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ نہ خود تماشا بنیں اور نہ پورے نظام کو تماشا بنائیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے تھے جنہیں ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ وزیر داخلہ چودھری نثار استعفیٰ دینے کی بجائے اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس دوران چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت سے
अपने 4 मुतालिबात मनवाने के लिए मुल्क भर के दौरों का ऐलान किया और कहा कि हमें सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। अपनी 4 डिमांड मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। हर सूबे में, शहर शहर, गांव गांव, बस्ती बस्ती। बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी को कभी अदालतों से इंसाफ नहीं मिला, जबकि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके भी क्लीन चिट मिल जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मियां साहब चाहते हैं कि वो मुल्क में करप्शन करते रहें और बिलावल भुट्टो चुप रहे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो उस माँ के बेटे हैं जिस पर नवाज शरीफ ने बहुत जुल्म ढाए। मैं चुप नहीं रहूंगा और अपनी वालिदा का अधूरा मिशन पूरा करूंगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के इलेक्शन लड़ने की मंजूरी दे दी है। कमेटी में मजीद क्या अहम फैसले हुए जानते हैं। गड़ी खुदाबख्श में मौजूद हमारे नुमाइंदे AK मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। AK मोहसिन, बताइएगा इस मुतालिक। बहुत अहम फैसले हुए हैं। एक तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो दौरों का ऐलान किया है, पूरे पाकिस्तान में दौरे करेंगे, उस हवाले से जायजा लिया गया है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो है वो हिदायत समझने जारी की है, मंजूरी दे दी है कि बिल्कुल चेयरमैन जो है वो जा सकते हैं, जाएं तमाम सूबों में और जो है वो अपनी अपोजिशन का सही किरदार अदा करें। दूसरी जानिब जैसे कि आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया था कि वो सूबाई अपना कौमी असम्बली की नशिस्त पर वो भी लड़ेंगे फरियाल तारपुर की जगह, और जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कौमी असम्बली की नशिस्त से लड़वाया जाएगा। इस हवाले से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दे दी है उनके इंतखाबात लड़ने की और पार्टी को हिदायत भी कर दी है कि उनके इंतखाबात लड़ने के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जाएं, तैयारियां जारी की जाएं। और खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि बाहर निकल रहे हैं, एक कैंपेन के तौर पर इस मुहिम को चला रहे हैं, इस वजह से उन्हें फुल जो है वो पार्टी सपोर्ट देगी, सपोर्ट फराहम करेगी। और ये कैंपेन जो होगी 2 रुख की कैंपेन होगी। एक जानिब हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा और दूसरी जानिब ये दोनों नशिस्तों के लिए राय आमा हमवार की जाएगी। वोटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनका दिल जीतने की कोशिश की जाएगी। ऐसे बयानात दिए जाएंगे ताकि वोटर जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट करें। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर दबाव डाले। 4 नुकात जो है उन्होंने पेश किए हैं, उनको हर सूरत में मनवाना चाहती है पीपल्स पार्टी। इस सिलसिले में वो हर आईनी तरीका और जमहूरी तरीका अपना कर दबाव बढ़ाना चाहती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया AK मोहसिन। नाज़रीन, जियालों के सर पर 2 धारी तलवार लटक गई है। बाकी बातों पर कान धरें या बेटे की ललकार पर लब्बैक कहें। आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने पर यकीन रखते हैं, जबकि बिलावल का रवैया जारहाना है और वो तहरीक चलाने के लिए पुरज़्म है। एक छोटा मोटा स्कैंडल नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। मुल्क को एक इनकॉम्पिटेंट वजीर आजम चला रहा है। नाकाम नाकाम नाकाम। कहते हैं एक मयान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस 2 धारी तलवार से चलाने की कोशिश की जा रही है। बाप पाकिस्तानी सियासत की ऊंच नीच से खूब आशना है और हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, जबकि बेटे का जवान खून मारो या मर जाओ की पॉलिसी अपनाना चाहता है। आसिफ जरदारी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हैं, उन्हें हटाने की बात भी करते हैं, लेकिन उसके लिए वो पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने के हक में है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो हैं जो अपने 4 मुतालिबात के लिए मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं। इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जाने का इरादा रखते हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ही नहीं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठे रहनुमाओं की सोच भी तकसीम है। एक तरफ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह आसिफ जरदारी की सियासत के हामी है, तो दूसरी तरफ एतजाज अहसन जैसे रहनुमा हुक्मरानों को कोई रियायत देने पर आमादा नजर नहीं आते। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी को अवाम के पास जाने से पहले अपनी पॉलिसी वाज़ेह करना होगी। ये नहीं हो सकता कि बिलावल तो हुकूमत हटाओ तहरीक शुरू करे और आसिफ जरदारी जमहूरियत के नाम पर मुकामती रवैया अपनाए। 2 रोया पॉलिसी से पार्टी को नुकसान होगा और अगले इंतखाबात में भी किसी मुआवजे की तवक्को रखना फजूल होगा।
बेनजीर भुट्टो की बरसी पर रावलपिंडी लियाकत बाग में जाए शहादत पर मकामी क़यादत की आमद का सिलसिला जारी रहा। कारकुनों ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की इसाले सवाब के लिए कुरान खानी भी की। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन शहीद बेनजीर भुट्टो की जाए शहादत पर कारकुनान और मकामी कायदीन की आमद का सिलसिला सुबह शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा। पार्टी जियालों की जानिब से बीबी की सियासी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। कारकुनान कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो जैसे अजीम लीडर सदियों में पैदा होते हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी को आप देख लिया करें कि उस पे क्या लोगों के हालात होते हैं और जियालों का क्या रद्द-ओ-अमल होता है, तो हम उसी सोच के साथ, उसी नजरिए के साथ पहले से ज्यादा बलबला अंगेज क़यादत के हमरा हम निकले हुए हैं। पार्टी ने किसी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस पे जो है वो हर गली मोहल्ले में कुरान खानियां भी हो रही हैं, जाए शहादत पे भी कुरान खानियां हो रही हैं। और हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुंदे बादे मुखालिफ से घबरा न है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम उनको अपने दिलों से कभी भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बेनजीर एक बहन भी थी, एक माँ भी थी। तो वो लीडर अब सदियों बाद पैदा होगा, तो आज हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब में शिरकत के बायस लियाकत बाग की तकरीब में शिरकत न कर सकी। बीबी की बरसी के मौका पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे।